Good morning, 6th standard. Today we see the sixth lesson, math sixth lesson, bar graph. Now, in you can see there is a one picture is there, and the vertical lines are vertical blocks are there, columns are there. These columns are where we see these columns. In the cricket match we see there is a India and Sri Lanka, both maps are there, and there is a runs and overs are there, how much runs are completed and how much overs are there. Now see the horizontal there is a over is there, horizontal this one is a over, and this one vertical is there, runs are there. मतलब जो horizontal है, जो हॉरिजॉन्टल ये ओवर्स है और जो वर्टिकल्स है वो क्या है, रन्स है. नाउ दिस वन इज अ श्रीलंका स्कोर इज देयर, दिस लाइट पिंक कलर, एंड दिस वन इज अ डार्क पिंक कलर, देयर इज अ इंडिया स्कोर इज देयर एंड ओवर इज देयर. ओके, नाउ हाउ मेनी थिंग्स डज द पिक्चर टेल अस अबाउट. अभी कितने थिंग्स का हमें वो इम्पोर्टेंस देता है. देयर इज अ टू कंट्रीज आर देयर, understand, two teams are there, then runs and over, that two things they give the मतलब हम लोग को उसका इंडिकेशन करता है वो. व्हाट शेप हैज़ बीन यूज इन द पिक्चर टू रिप्रेजेंट द रन्स. अभी रन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या शेप्स दिया है, तो ऑब्वियसली रन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या दिया है, उधर ब्लॉक्स दिए, मतलब कॉलम्स दिए. नाउ सी दिस ऑल थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन पिक्चराइज एनी थिंग्स इन सो लेस प्लेस. मतलब कम जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं. लाइक अ पिक्टोग्राफ. नाउ सी इन द पिक्टोग्राफ ऑल्सो देर इज अ वन साइकिल इज देयर, एंड दिस साइकिल देर इज अ स्केल is given. The picture, one picture is indicate 5 vehicles. Now how much vehicles are there? Bicycle 1 2 3 4 5 6 are there. Now 6 5 are how much there? 30 is there. Now 30 bicycle can we draw there? No, we cannot draw the 30 bicycle. That's why for the one bicycle you take the 5 vehicles. Okay, why these pictographs are used? These pictographs are used for the less means large information we can write in less place. Okay, now what is a graph is there. Now see graph paper is like this, there is a boxes are there, and this one is a from this one to this one there is a one box is there. Now how much lines are there? See there is a 10 lines are there. How much? 10 lines are there. Understand? Now there is in the graph there is a horizontal line is there. This horizontal line represent the x axis and this vertical line represent the y axis. मतलब जो horizontal line है वो x axis रहता है और जो vertical line रहती है वो क्या रहती है, y axis. And you have to write the scale on this upper side of the graph. Now see scale, what is scale is given here. Scale on the y axis 1 unit is equal to 5 vehicles. अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था, जो 1 vehicles is equal to 5 vehicles ये स्केल लिया था. तो फॉर एग्जांपल 0 to 5 there is a 5 vehicles are there, then 5 to 10 there is a 10 vehicles are there, 10 to 15 15 vehicles are there, like that 30 is there last, and bicycle is there, then motorcycle, rickshaw and bullock cart. How many people are use bicycle? Now how much vehicles are there? How much bicycles are there? Now how much? 6 bicycle. Then one picture there is a 5, then how much? 30 is there. Understand? मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन वाई एक्सिस, मतलब स्केल किस पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पे. ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स. अभी इधर भी हम लोग स्केल लिखते हैं लेकिन इधर क्या नहीं है, नंबर से वर्ड्स में लिखा है, इसलिए नेम ऑफ व्हीकल्स लिखा है, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. Now there is a practice set number is there. Now first question is there, we are going to learn. These bar graphs show the maximum temperature in the degree Celsius in the different city on the certain day in the February. Observe the graph and answer the following question. अभी देखो ये ग्राफ देखो, ग्राफ there is a x axis is there and this x axis denoted the city's name and this y axis is there, this y axis denoted the temperature, different temperature is there. Now see what data is shown on the vertical and horizontal
horizontal line. And what is the scale is there? On scale is there on y axis 1 unit is equal to 5 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक यूनिट के यूनिट में कितना टेम्परेचर है? 5 यूनिट है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. नाउ व्हाट डेटा इज शोन इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन? कौन सा डेटा शो किया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे? देखो, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंडिकेट द सिटी नेम एंड दिस वर्टिकल लाइन इंडिकेट द टेम्परेचर. अंडरस्टैंड? मतलब ये क्या करता है? टेम्परेचर डिनोटेट करता है और हॉरिजॉन्टल लाइन नेम ऑफ द सिटीज डिनोटेट करता है. विच सिटी हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर? नाउ सी विच सिटीज देयर इज अ अपर, मतलब सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है? 35. तो दैट 35 डिग्री टेम्परेचर कौन से सिटी का है? ऑब्वियसली चंद्रपुर. देन व्हाट यू हैव टू राइट द आंसर? द चंद्रपुर सिटी हैड, चंद्रपुर सिटी द हाईएस्ट टेम्परेचर. विच सिटी हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर? कौन से सिटी का टेम्परेचर इक्वल है? तो देखने का, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑब्वियसली ये दोनों, ये पंचगनी एंड माथेरान द सेम टेम्परेचर इज देयर बिकॉज देयर इज अ सेम means 25 temperature is degree temperature is there. That's why which city had equal maximum temperature? The Panchgani and Matheran is the equal maximum temperature. Now which city had a maximum temperature of 30 degree? अभी 30 डिग्री. which city has maximum temperature of 30 डिग्री? ऑब्वियसली अभी ये दो सिटीज़ का है. देखो, पूना और नासिक का भी सेम है, तो हम लोग पंचगनी माथेरान, ये क्या हुआ? मैक्सिमम. और ये 30 डिग्री टेम्परेचर कौन कौन से सिटी का है? पुणे एंड नासिक. विच थिंग्स? पुणे एंड नासिक. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस between the maximum temperature of the Panchgani and Chandrapur? मतलब what is the difference between the maximum temperature of Panchgani and Chandrapur? अब ये पंचगनी का 25 और ये 35, then how much difference is there in Chandrapur and Panchgani temperature? Obviously this one is a 35 and this one is a 25, then how much less is there? Obviously 10 degree temperature is there, the difference is there. Understand? मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर का क्या है? डिफरेंस है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम इज देयर? ओके, नाउ देयर इज अ ड्राइंग द ग्राफ. हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ? नाउ सी, नाउ when we draw the graph you get this, like this table is there. Now this name of the plant, मोगरा, जाई, हिबिस्कस, क्राइसोनमस, मतलब ये आपको क्या किए? फ्लावर्स के नाम दिए. एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, हाउ मच मोगराज आर देयर? 70. देन देयर इज जाई इज 50. देन हिबिस्कस इज 45 एंड सैंथेमस इज देयर 80. मतलब एंथेमस इज देयर 80. ये 80 है. ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ? द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक द graph paper like that. Graph paper you have to take. On that graph paper, first of all you have to draw the x axis and y axis. okay, सबसे पहले क्या करेंगे? x axis और y axis क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे हम लोग. Now see, there is a नंबर ऑफ प्लांट्स आर देयर ना, इन विच नंबर्स दे कम, मतलब कौन से टेबल में आ सकते हैं? देखो, वो तो ऑब्वियसली वो कौन से टेबल में आ सकते हैं? देखो 70, 50 और 80 ये सब 10 के टेबल में आते हैं. इसलिए हम लोग क्या लेंगे? 1 स्केल क्या लेंगे? ऑन द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट. क्या करेंगे? ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट. नाउ सी, देयर इज अ बार ग्राफ इज देयर, मीन्स वाई एक्सिस इज देयर एंड एक्स एक्सिस इज देयर. Now first of all, what is there in first question? There is a mogra. Then how much number of plants are there? 70. Now you have to write in first column there is mogra, then zai, then hibiscus and chrysanthemums. Abhi mogra, how much mogra plants are there? 70. Then you have to draw the line like this and you have to give the dark shading to that mogra. Now there is a next one, there is a Zai is there. Zai, how much plants are there? 50. Then you have to draw up to the 50. Okay, like that. Now 55. Hibiscus is there. 55, I think. 45. Hibiscus 45. How you take? Now this 45 means you take up to the 40
देखो ये 40 तक लिया और 40 के आगे आपने काउंट किया ना 1 2 3 4 5 स्मॉल लाइंस रहते और एक बीच में ही डार्क रहती है, तो उस डार्क का क्या मतलब होता है 45. अंडरस्टैंड, दिस हिबिस्कस इज 45. मतलब 40 के ऊपर 5 जो लाइन रहते हैं स्मॉल, उसको क्या बोलते हैं 45. तो हम लोग हिबिस्कस का क्या ड्रॉ करेंगे स्केल, मतलब हिबिस्कस कितना ड्रॉ करेंगे 45. नाउ देयर इज अ क्रांथेमस इज देयर, that how much 80 is there, you can draw the 80. Okay, like that you have to draw the bar graph. Okay, every bar graph is graph should be equal widths. अभी आप बोलोगे ये ज़्यादा बड़ा करता हूँ मैं इधर से इधर तक, नहीं, तो ये जितना किया है उतना ही ये भी करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बार शुड बी इक्वल. अभी देखो इधर दो डिस्टेंस छोड़ा है, तो ऑब्वियसली इधर भी दो डिस्टेंस ही छोड़ने का, नहीं तो वो देखने में क्या हो जाता है बहुत ख़राब लगता है. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रॉपरली टू बॉक्सेस छोड़ के ही वो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. ऑल बार शुड बी अप्रोप्रिएट हाइट. नाउ उसका जो हाइट है वो अप्रोप्रिएट मतलब जो उन्होंने बोला है वही होना चाहिए, ना कि मेरे को आप फर्स्ट वाला 70 चाहिए 80 चाहिए और ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे वो अरेंज करना है. उस तरह से कुछ भी कर नहीं सकते हो. उन्होंने जो स्केल दिया है वही स्केल पर आपको क्या करना पड़ता है, बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. नाउ एनी प्रॉब्लम इज देयर फ्रॉम दिस बार ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ. ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ. अभी एक बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अभी हम लोग को देखो एक क्वेश्चन है. नाउ 30, फर्स्ट ऑफ ऑल there is a name of the head of the some families in the village and quantity of drinking water their family consume in one day is given below. Draw the bar graph of this, and scale is there, they given scale. You don't take 1 centimeter is equal to 5 liter of water. Your answer is wrong, your graph is wrong. Which one they give na, you have to write only that much. Okay, now this one is a Ramesh family is there, Shobha. Then what you have to do, first of all you have to do like this. First of all you do now see this one is a graph is there. Okay, now on the x-axis what you have to write, you have to write name of family. Okay, क्या करोगे, सबसे पहले नेम ऑफ फैमिली ड्रॉ करेंगे. नाउ दिस वन इज अ यू कैन राइट नेम लाइक दिस ऑल्सो, रमेश. देन यू हैव टू कीप वन बॉक्स लीव. देन देर इज सेकेंड वन. otherwise you can directly take there, write down first of all graph, then you have to write everything. Okay, now there is a IUB is there 60, then what scale is there 10, then you have to write like this scale here 10 20, then 30 is there, 40 50 60 and 70. Okay, okay, otherwise you can do like this 10 20 30, 10 20 30 40. ये आपका 40 हो गया. ओके, मतलब आपको क्या करना है 10 20 30. अभी 30 तक ही दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर का है ना, इसलिए. अभी देखो पहला वाला कितना है, रमेश के फैमिली ने कितना वाटर ये किया है 30. तो क्या करेंगे, इधर से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू 30. तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे शेडिंग करेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव टू राइट स्केल. स्केल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज देयर. स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर. हाँ, क्या लिखेंगे, लीटर्स. ओके, लाइक दैट देर इज अ रमेश इज कंप्लीटेड. यू हैव टू गिव डार्क शेडिंग इज देयर. ओके, पूरा फाड़ने का नहीं, उसको प्रॉपरली ड्रॉ करो लाइक दिस. दिस वन इज अ रमेश इज कंप्लीटेड. देन फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नयन या राजू इज देयर.
राजू ने के घर वाले ने कितना वाटर कंज्यूम किया है 20 लीटर, तो आपको 20 का इस तरह से क्या करना पड़ेगा, बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देन विजू की फैमिली ने 10 लीटर ही वाटर क्या किया है, कंज्यूम किया है, तो क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज़ अ प्रॉपर वे टू ड्रॉ द बार ग्राफ। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम इज देयर हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ? नो ना? ओके, then what you have to do like now there is some questions are there. See, this exercise 19 is there, then there is so much questions are there. Then what you have to do, you have to draw the bar graph on graph paper and you have to send me, okay, on WhatsApp. Okay, thank you all of you, have a nice day.